Hello, everyone. This is Rashi Roop Laxmi. I'm a manifestation and a performance coach. I'm a tarot reader. I'm an astrologer. And I keep coming back time to time with people, with interviews that really help you manifest your quest in your life. And like every time, I have someone very, very special even today. But before that, let me ask you and let me get started with, have you liked, subscribed, and pressed the bell button of the YouTube channel? If you have not, then please do that now. And let me go further that today I have got a very special person before me who will help you manifest your quest in your life. That person is, let me introduce you, the Vikas Vaibhav, decorated IPS officer, Special Secretary, Home Department, Government of Bihar, the man on a mission to bring a change, a mechanical engineer from IIT turned IPS officer, and is known for his determination to make a change. He has won many battles on personal and professional fronts. With his ever-evolving philosophy, a battle which was won so well is yet to be won. This is what he wrote when he reappeared in IIT JE in 1997. It is no coincidence that his name has become synonymous with Vikas and Vaibhav, which is associated with his work. He has truly lived up to his name. He needs no introduction, as his vision to bring a change in the society has been consistent with a never give up attitude. He has been successful in inspiring people and the youth in particular to identify their passion and follow it. So here is a little introduction about him. So let's meet him in person and see what he has to say about himself. Namaste, Rashi ji. Very good afternoon to all the viewers. And I would like to go ahead and ask you, sir, that you have accomplished so many things in life. Today, you are inspiring the youth of Bihar, and that is not a small feat at all. You are doing it on a mass level. You have brought a huge change in the thought process of the citizens and the youth of Bihar. Apart from the achievements of a decorated IPS officer that you have accomplished, your contribution apart from your work life, I want to know what is the driving force that pushes you beyond your designated duties to do what you're doing today, that you have become a source of hope for people and the youth in Bihar. I have always believed that every one of us is born very unique and is born with an immense source of energy. The energy is so much that you just can't realize it even in whole lifetime. अगर आप सोचेंगे आप क्या है तो you simply, जैसे हमारे इंडिया में पहले कहते थे, philosophers कहते थे, लोग कहते थे, we are a part of the divine, and divine is full, it's complete, it's full energy. So that part, if you represent and if you start thinking of yourself as being a part of that, then that immense energy starts manifesting, and you start representing something which comes directly from within. और जो अपने भावनाओं को जो भी आप चाहते हैं उसको आप करना चाहते हैं, अच्छे से आप जीते हो, करते हो, इट गिव्स यू सेटिस्फैक्शन. तो बचपन से हर आदमी कुछ सोचता है मैं ये करूं, बट देन बिकम वो चीजें रुकने लगती हैं इन वेक ऑफ लिमिटेशंस. देयर आर सेवरल लिमिटिंग फैक्टर्स. चैलेंज ये है कि जब लिमिटिंग फैक्टर्स दिखें तो लिमिटिंग फैक्टर्स तो आएंगे, सबकी लाइफ में आएंगे, लेकिन आगे कैसे बढ़ना है, कैसे उन चैलेंजेस को फेस करना है, और चैलेंजेस को फेस करते हुए जो आपके ड्रीम्स थे, तो उसमें सबसे बड़ी बात है, if you stay positive, realize how much energy you have. Every day is a new day, it's a new beginning, and whatever has happened, just think कि आगे क्या करना है. हमेशा ये सोच कर चलेंगे, and you always believe कि जो मन में गोल है उसकी तरफ मैं बढ़ता जा रहा हूँ तो बढ़ेंगे. This is what has happened right since the days of early childhood. मन में एक बात जगी, कुछ करना है, बिहार के लिए कुछ करना है. Today I am in बिहार, बैठा हूँ, काफी जगह पुलिसिंग भी कर चुका हूँ, बट वहां भी मैंने अपने आप को लिमिट नहीं किया. जहां रहा तो आई ट्राई टू स्प्रेड दैट एनर्जी एंड स्प्रेड इट मोर एंड मोर. तो जो भी यूथ मुझसे मिले, जो लोग मिले, स्कूल में बच्चे मिले, तो आई एम ट्राइंग टू मेक देम रियलाइज व्हाट दे आर. Essentially, that is the whole spirit behind Let's Inspire Bihar. We were something in the past. Today we seem to be confused, but confusion होने से कोई ऐसी बात नहीं है कि आप कर नहीं सकते.
एनर्जी वही है, डीएनए भी वही है जो हमारे पूर्वजों का था. तो वी कैन डू समथिंग. द थिंग इज दैट वी हैव टू रियलाइज व्हाट वी आर. And that's simply so amazing that you have many people think it this way. वो सोचते हैं कि हम ये करेंगे. The point is, sir, that you're doing it. नहीं, इसमें Not there is like, everybody. Yeah. How is it like possible for a person? What is so staggering to see is the humongous amount of work that you're doing today. इसमें I I'm always reminded of King Bhartihari. Bhartihari, if you know the story, he was a king and then he abdicated his throne because he wanted to know the truth. He was like, उनको लगा कि जिंदगी जो है सब बेकार है, मोह माया है. Then he thought about life और उन्होंने फिर वो नीति शतक लिखे. He has 10 principles on which you can think over life. And one of these principles is किस तरह के लोग होते हैं. He defines 3 types of people who are looking for success. तो उसमें हम लोग स्कूल में थे तो एक पोएम हम लोग गाते थे. काम शुरू करते नहीं भय से नीचे लोग, मध्यम त्यजते बीच में, देख विषम संयोग. मतलब काम शुरू करते नहीं भय से नीचे लोग. द फर्स्ट कैटेगरी, लॉट्स ऑफ पीपल जो काम शुरू ही नहीं करते, उनको लगता है कि बहुत मुश्किल है. द सेकंड कैटेगरी इज मध्यम त्यजते बीच में. स्टार्ट किए, कुछ करना शुरू किए, बट आफ्टर सम टाइम दे फाइंड इन द वेक ऑफ एडवर्सिटीज, इन द वेक ऑफ लिमिटेशंस कि मुश्किल है भाई, तो होगा नहीं. पर उत्तम वे लोग जो हर दुर्गम पथ झेल, दृढ़ता से बढ़ते सतत बाधाओं को ठेल. The people who succeed are the people, everyone will face one similar circumstances. There will be limitations, there will be adversities, but इसमें जो लोग succeed करते हैं वही करते हैं जो खुद को realize करते हैं. With that determination, दृढ़ निश्चय, उसके साथ बढ़ते हुए, all these adversities will just be a matter of time, they will pass. But वो determination अपने अंदर रहनी चाहिए, that confidence अपने अंदर रहनी चाहिए कि मैं कर सकता हूँ. And believe me, if you have that confidence, जैसे आपने जो book लिखी है, almost every page is inspiring. It conveys the very same message which King Bhartihari had one day, once upon a time, 2000 years back, thought of. He says there are 3 types of people, and even today, if you realize, like in any competitive exam, in any field of life, some people succeed, others don't. For most of them who don't, you'll find they had a desire. वो चाहते थे. Some of them also had the dedication, but after a point of time, they did not have the requisite determination. So if you want to succeed, you need to have a desire, dedication, and determination. And whatever be the goal, भगवान ने आपको इतनी ऊर्जा दी है और खुद अपनी आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हो कि भाई मैं नहीं कर सकता हूँ, मुश्किल है. मुश्किल कुछ नहीं है, इट्स लिमिटेशन दैट इज मेड इन योर माइंड. बस मन की उस सीमा को पार करोगे तो आप देखोगे जो चीजें असंभव लगती थी वो भी संभव हो जाएगी. अपने छोटे से जीवन में मैंने भी देखा जो बहुत सारी परीक्षाएं दी, उसमें जब पास हुआ तो कैसे हुआ. बहुत सारे ऐसे पल आए जब लगता था कि होगा ही नहीं. जब बिल्कुल एग्जाम से बहुत कुछ दिनों पहले ऐसे रिजल्ट आए जिन्होंने बिल्कुल ही उद्वेलित कर दिया. But in spite of that, with that determination, I cleared those examinations. In real life, ऐसा हुआ जैसे I have always spoken of my experience in districts like Bagha, in district like Rohtas. But जैसे examples में ऐसे examples हैं जो बिल्कुल लगता था कि होगा ही नहीं, but हुआ. वैसा ही हुआ because मन में था कि होगा, कुछ चल रहा है. एक बार जैसे हम लोगों ने एक बुक पढ़ी थी, you must have read that book, The Alchemist. When you think that you want to do something very deeply, आप चाहते हो, then all the energies of the universe start conspiring and they start helping you in some way. But कितनी आपकी चाहत है, कितनी आपकी determination है, ये आपको देखना होगा. अगर है तो आप देखोगे बहुत चीजें अपने आप हो जाती हैं. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे मैं जब पढ़ता था 11th 12th की बात कर रहा हूँ, तो मुझे सुबह उठने में बड़ी दिक्कत होती थी because I used to sleep late and then getting up in the morning was like बहुत मुश्किल था, ऐसा लगता था. But one day I realized, बहुत मन था कि नहीं, बिल्कुल मैं 5 बजे उठूंगा, sleep at 12 midnight. And believe me, I did not need an alarm clock or anyone to wake me up. When my eyes were opened, I saw the clock. It was .5. तो पता नहीं वो कहाँ से कैसे हुआ. I believed it was a miracle. But उसके बाद जब मैंने देखा, जब मैं ऐसे सोता था, उसी मन के साथ, तो लगभग जो सोच के सोता था, उसी टाइम पे उठता था. कैसे होता था? How my body clock adjusted, I don't know. But this is something जो आपको लगता है कि आपके अंदर एक बहुत बड़ी strength है, एनर्जी है, जिसको आप रियलाइज अगर करते हो तो आप करते हो. Absolutely. And मुझे यही लगता है कि manifestation is all about that realization and that belief in oneself, which I think people who are doing it and achieving success somehow or the other, knowingly or unknowingly, know the secrets of manifestation somehow. मुझे ऐसा लगता है कि आप भी उनमें से एक हो जो कि कहीं ना कहीं ये जानते हो कि how to manifest in your life. Isn't like it? I will share 2 examples. Districts की मैंने बात की, like पगहा में जब पोस्टिंग हुई थी मेरी, it was called mini Chambal.
टेरेन काफी टफ था, बहुत सारे डकैत गैंग्स थे, एंड दीज गैंग्स यूज्ड टू किडनैप पीपल एंड किडनैप फॉर पेटी अमाउंट्स, फॉर इवन लार्ज अमाउंट्स, बहुत तरह की चीजें करते थे, बट इट वॉज वेरी ऑर्गेनाइज। उनकी अपनी खेती होती थी, उनके शुगर कैन प्लांटेशंस थे, लोगों की जमीन पर कब्जा किया हुआ था। तो बहुत समय तक पुलिस के अलग अलग ऑपरेशन चले, ऑपरेशन व्हाइट पैंथर, ब्लैक पैंथर। ब्रिटिश टाइम में लोगों ने लिखा इट्स द यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम अबाउट दोज दियारास जो गंडक का बेल्ट है। बट क्राइम चल रहा था, इनिशियली डकैतीज होती थी, बाद में इट टर्न इनटू किडनैपिंग्स। और पूरा ऐसा था कि जैसे इन नॉर्मल सिटीज इफ यू किडनैप्ड यू रिसीव अ रैंसम कॉल बाय फोन और बाय सम मैसेज। यहाँ पे बकायदा कोई आदमी आता था, डिलीवर करके जाता था चिट्ठी, उस पर स्टाम्प लिखा रहता था और सारी लिस्ट बनी रहती, क्या क्या चाहिए, अमाउंट लिखा था कैश, देन अपार्ट फ्रॉम द कैश उसमें कितने बोरे अनाज चाहिए, कितने उसको लिकर की बॉटल्स चाहिए, कितने चांद मार्का की लुंगी चाहिए, all these things which they require to live in the forest. And all these gangs used to be operate like in the scale of 30-40 people around with the main gang leader. And this was going on for years. अब इसके बारे में जब बात होती, मेरी जब पोस्टिंग हुई थी तो इट हैड हैपेंड आफ्टर एन इंसिडेंट ऑफ क्राइम। लोग बात करते तो बोलते भाई यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता, तो पीपल देयर बिलीव्ड ये तो ऋषि वाल्मीकि का क्षेत्र है, वाल्मीकि नगर इज द प्लेस, द होल फॉरेस्ट इज नोन बाय दैट नेम, कि कभी उनका आश्रम था वहाँ। तो लोग कहते थे उस जमाने में जब इतना क्राइम था तो आज भी उसी का मैनिफेस्टेशन चल रहा है, ये कभी सॉल्व होगा नहीं। एंड इनफैक्ट जब मैं वहां पहुंचा, जब पहली किडनैपिंग हुई तो आई वाज शॉक्ड, अरे क्या हो गया। एंड आई शेयर्ड माय ग्रीफ विद द पुलिस हेडक्वार्टर्स, एंड यहाँ से बोले रहे तुम बगहा चले गए हो, बगहा में चिंता करने की बात नहीं, आदत लग जाएगी, वहां इसको आदमी को किडनैपिंग नहीं कहते, चोरी कहते हैं। तो भाई मुझे बड़ा खराब लगा कि भाई पहली बार, एंड आई हैड कम विद अ मिशन इन माइंड कि बिहार में कुछ करना है, आई हैव कंट्रीब्यूट। तो ऐसा तो मैं था नहीं कि बस आऊंगा और नॉर्मल एसपी की तरह रह के चला जाऊंगा। आई वांटेड टू मेक माय पार्ट एंड प्ले माय पार्ट, प्ले माय रोल इन समथिंग व्हिच कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ दैट एरिया। तो बगहा में जब गया तो बिल्कुल क्राइम इफेक्टेड था, लोग निकलते नहीं थे घर से, शाम होते ही बंद हो जाते थे, गाड़ियां बंद हो जाती थी, दिन में भी लोग डरते थे। उसमें जब मैंने सोचा तो एक नॉर्मल थिंग इज एज अ पुलिस ऑफिसर यू थिंक ऑफ ऑपरेशंस, अरेस्टिंग पीपल, गोइंग अराउंड देम, ये भी हुआ, बड़े ऑपरेशंस हुए। आई रिमेम्बर पहली बार जब दियारे में घूमे, आई फेल्ट लाइक आई विल कॉम द दियारा, जैसे कंघी करते हो आप बाल की, वैसे ही इतना फोर्स लेके जाएंगे, बिल्कुल दियारे में चलते जाएंगे, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। बट जब चलने लगे तो आई रियलाइज हाउ टफ इट वाज। तो खेत में चलोगे तो चल ही नहीं पाओगे, इतने लंबे लंबे शुगर केन और अरहर के प्लांटेशन थे। उसी बीच में दिखा किस तरह से लोग रहते थे, और शुगर केन में कोई छुपा हो बगल में ही तो दिखेगा ही नहीं, आप कितना भी खोजते रहो, इतने इतना घना होता है। तो देन आई रियलाइज कि ऐसे चलेगा नहीं। इनफैक्ट वी हैड सम सक्सेसेस, सम पीपल गॉट किल्ड आल्सो, बट वो तो हमेशा से चल रहा था, यू विल विन मेडल्स फॉर दैट बट इट विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ दैट एरिया। तब मैंने कॉन्सेंट्रेट किया करना क्या चाहिए, देन फॉर अ डिफरेंट अप्रोच आई फेल्ट इकोनॉमिकली वी हैव टू हैम्पर देम। और जितने भी शुगर कैन प्लांटेशन थे सब इलीगल है, दे इलीगली कल्टिवेटेड, सो वी स्टार्टेड सीजिंग देम बाय स्टेशनिंग फोर्स एंड एम्प्लॉइंग लेबर, and the amount was being deposited in the government treasury. I remember in the year 2006-7, almost more than 25 lakhs was deposited in the government treasury, which otherwise would have gone into their pockets. तो इनको गैंग हैंडल करना, क्योंकि इट वाज लाइक अ सैलरी, सबको सैलरी मिलती थी महीने की, तभी लोग काम करेंगे ना, इतने लोग कैसे चलेंगे आपके साथ। तो वो बंद हो गया, उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गया। और दियारे में जो हम लोगों ने पोस्ट बनाए, घूमते रहे, किडनैपिंग्स पे असर हो गया, किडनैपिंग्स इतना आसान नहीं रहा। इट वॉज द बॉर्डर ऑफ यूपी, नेपाल एंड बिहार। तो जब ये दोनों प्रॉब्लम्स हुई तो नेचुरली थोड़ा क्राइम आपका कम होगा, बट फिर भी मुझे लगा कि इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, इट विल बी लाइक अ टेम्पररी रिप्रीव। देन वी स्टार्टेड अप्रोचिंग द फैमिलीज ऑफ दीज क्रिमिनल्स। उनसे हम लोगों ने बात करनी शुरू की कि आप कहते हैं कि भाई वाल्मीकि के समय से क्राइम था, बट वाल्मीकि अगर वाल्मीकि ही रहे, मतलब वाल्मीकि अगर रत्नाकर रहे होते, वाल्मीकि को आप क्यों कहते हैं कि ऐसा था, क्राइम था, क्योंकि कभी डाकू थे, बैंडेड, रत्नाकर कहा जाता था उनको। तो रत्नाकर यदि रत्नाकर ही रहे होते तो वुड द वर्ल्ड हैव नोन हिम। लोग भूल गए होते कितने रत्नाकर आए, कितने चले गए, किसको लोग याद रखते हैं। बस एक आधी ही ऐसा कोई याद रहता है जिसने अपने जीवन में कुछ परिवर्तन का निर्णय लिया। भगवान बुद्ध भी जब घूम रहे थे तो अंगुलीमाल से उनका साक्षात्कार हुआ, अंगुलीमाल चेंज एंड दैट्स हाउ द वर्ल्ड नोज हिम। इतना भीषण आदमी और बुद्ध के मिलने से चेंज हो गया। वाल्मीकि जब रत्नाकर से वाल्मीकि हुए, द होल वर्ल्ड नाउ नोज हिम एंड प्रेजेस हिम एंड वी एक्चुअली वर्शिप हिम। बट अगर वो रत्नाकर रहे होते तो ऐसा ही रहता। तो भाई अपने परिवार को, जो आपके लोग हैं भटके हुए, प्लीज ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड ये जो कर रहे हैं कोई याद नहीं रखेगा, अपने परिवार वाले भी इतने बाद में कोई याद नहीं रखेंगे जिसके लिए वो कर रहा है। बट अगर उसने कोई निर्णय लिया परिवर्तन का तो पूरे इलाके में लोग उसको प्रेज करेंगे, लोग जानेंगे कि इतना कठिन निर्णय लेते हुए इसलिए लिया क्योंकि समाज के लिए कुछ करना चाहता था। तो जो भी उसके पाप है एक तरह से आप समझो लोग माफ कर देंगे अगर वो मुख्य धारा में आता है। And it worked amazingly. Like initially one surrendered and then gradually all of them started surrendering one by one.
because we had made promises that we'll do something for the rehabilitation of your families as well, and we'll provide them security once you go to jail. We kept our word, and when all these people surrendered, so the 26 of them surrendered in the span of a year, and the whole problem was solved. Huge. Like kidnappings used to happen in 50s, hundreds a year. In 2008, it went down to zero, and everyone was amazed कि हुआ क्या. So something which was impossible became possible by a different approach. We worked economically and we worked in a humane manner with the inspiration from heritage. Like Valmiki was taken in a different way, we used him in a different way. And we started appealing to the family, it worked. Similarly, when I went to Rohtas was in total turmoil. 2 of the police stations had recently been razed. One DYSP had been killed in an encounter with the Maoists. And these Maoists were in full control of the mountains of the hilly areas of the district. And from there, from their safe areas, they would launch raids in the district. So everyone was feeling unsafe, including every police officer. So many had got killed over the years, and things were just, लोग सोचते थे कि हो ही नहीं सकता, because Rohtas is one of the toughest terrains in the whole of North India. In fact, even in Mughal times, Farishta, he had written about the Rohtas Fort कि it is one of the forts जिसको आप जीत नहीं सकते. You cannot win it by direct force, you can only win it by deceit. ऐसी ही कहानियां शुरू से रही हैं. तो ऐसे इलाके में जब उनका कब्जा हुआ, तो इट वाज सच अ ट्रॉमेटिक थिंग कि जब इंडिपेंडेंस डे आता था, रिपब्लिक डे आता था, तो दे यूज्ड टू हर्ल ब्लैक फ्लैग्स ओवर द रोहतास फोर्ट. इट वाज सच अ डिसग्रेस. इन इंडिपेंडेंट इंडिया, ब्लैक फ्लैग्स फ्लाइंग ओवर द फोर्ट वाज समथिंग कि हम लोग कर क्या रहे हैं. तो उसमें भी इनिशियली द सेम पुलिस रिस्पांस इज लाइक आप जाओगे पीछे खोजोगे. इट वाज अ ह्यूज लाइक 3000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ फॉरेस्ट. उसमें आप जाके खोजोगे इनको, यू जस्ट नॉट फाइंड देम, एंड ड्यू टू देयर गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स दे विल हिट यू. मेरे साथ भी हुआ, लाइक इट वाज अ सरप्राइज. इनिशियली ऑन 3rd of September 2008, बगल से बिल्कुल 6 इंच से गोलियां चली. अचानक आमना सामना हो गया. एंड इफ आई एम स्पीकिंग टू यू टुडे, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो जिसके पास हथियार था वो सामने खड़ा था, जिस बिल्कुल 6 फीट दूर था, उसने फायर कर दिया तो मैं शायद बात नहीं कर रहा होता. इट हैपेंड एट 5 o'clock in the morning. इट्स अ होल स्टोरी जो मैंने नरेट किया है, कैसे हुआ था, क्या हुआ था. बट द फैक्ट इज कि इनिशियली जब वैसा हुआ, उसके बाद एक और दूसरे एनकाउंटर में वी लॉस्ट वन ऑफ आवर जवान्स. एंड देन आई फेल्ट कैसे चलेगा नहीं, ये तो चलता रहेगा. हम लोगों ने पहले क्या, वही पहाड़ को हम जाने, तो वी लॉन्च्ड एन ऑपरेशन कॉल्ड ऑपरेशन विध्वंस. तो उसमें हम लोग जाते थे, एंड आई यूज्ड टू कैंप फॉर 3 nights कंटिन्यूअसली इन द जंगल, जिसमें क्योंकि जो भी डिस्टेंस कवर करना तो पैदल करना था, पर एक दिन में आप 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर से ज्यादा चल नहीं पाओगे. एंड द डिस्टेंसेस वी यूज्ड टू कवर वाज लाइक 45 किलोमीटर इन 3 days. उसमें जहां भी जाते वी यूज्ड टू टॉक टू द विलेजर्स एंड ट्राई टू एंगेज कि क्या है. तो पुलिस को देख के लोग भाग जाते थे, तो हम लोग फिर बुलाते थे, बच्चों को बुलाते थे, पूछते थे. And gradually I realized that all of them have an inspiration from heritage. Everyone is connecting to the Rohtas Fort. The Oraons, the Kharwars, the main tribes which live there, वो कहते हैं कि भाई हमारे पूर्वजों का ये उद्गम स्थल है, हम तो यहीं से आए हैं. It was such a majestic fort on the top of a hill. जब उनके पूर्वज ऐसा बना सकते थे, तो भाई यही हम कहते हैं कि जब तुम्हारी पूर्वज इतने यशस्वी थे, उन्हीं के तुम वंशज हो, ऐसा माहौल क्यों है तुम्हारे यहाँ कि भाई पुलिस तो छोड़ दो, जिले के लोग भी आने में डरते हैं. क्यों ना हम लोग अपने जीवन में कुछ करें जो अच्छा हो. एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग वेरी हाई अबाउट देयर एंसेस्टर्स. जैसे वो लोग थे जो जितने भी वहां तो खरवार थे, वो मानते थे कि राजा हरिश्चंद्र हमारे पूर्वज हैं. तो हम कहते भाई इतने महान थे, आप इतने महान थे, आप ऐसा करते थे, तो आज क्या हो गया. तो व्हेन वी स्टार्टेड रिमाइंडिंग देम अबाउट देयर हेरिटेज, दे स्टार्टेड कनेक्टिंग विद अस. उससे फिर हम लोगों ने एक कम्युनिटी पुलिस प्रोजेक्ट शुरू किया, which was called Son Mahotsav, in which we would invite doctors from the district, we would invite social workers, and we'll try to organize camps in which we used to help them. और उसमें हम लोग करते थे, ट्राइबल को बुलाते थे, उनके कल्चरल प्रोग्राम्स कराते थे. A feeling of association, a feeling of pride about heritage, and with their support, it was possible in 2009, 26 January, that the tricolor of India was hoisted for the first time on the fort, about which no one dared or cared. बिल्कुल लोग छोड़ चुके थे. तो कनेक्टिंग विद पीपल, एंड ग्रेजुअली जिस इलाके में पुलिस जाती थी, बिल्कुल लैंडमाइंस लगी रहती थी, बहुत लोग मारे गए. जब सूचनाएं मिलने लगी, तो इन 2009 we could conduct the parliamentary elections for the first time after a gap of more than 2 to 3 decades. तो पहले booths used to get shifted due to the fear of Maoists. और उसमें वहीं पर हम लोगों ने कराया. पहली बार जब हुआ, तो एक BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पूरी कंपनी लगी थी. on 16th of April 2009 इलेक्शंस होने थे, कंपनी पे अटैक हो गया. मतलब you can imagine the whole company of BSF, 100 men, they were attacked by Maoists. One of the jawans got injured, and elections could not be held on 16th of April due to the effect of the Maoist forces कम थी. But next time हम लोग भी जिद्दी थे,
3 बिल्डिंग्स पे इलेक्शन कराने के लिए 16 कंपनी लगी. 16 कंपनी मतलब 1600 जवान, just for 3 buildings. But to make it a point that we'll conduct polls right in your bastion, and we'll see that people are not bereft of democracy. तो जब ये बात हुई तो people started feeling कि पुलिस हमारे लिए इतना कर रही है तो क्यों ना हम भी जुड़ें. और with all that initiative which was represented by heritage, their own heritage. तो असर ये हुआ कि people, all these tribals, they ultimately revolted against the Maoists. जिनका मेन सेफ हाउस जो था इन ट्राइबल्स का घर हुआ करता था, उन लोगों ने रिवोल्ट कर दिया. इट वाज अनबिलीवेबल. लोग सोच भी नहीं सकते थे ऐसा होगा, बट ये हुआ. देयर वाज रिएक्शन. Maoists attacked some tribal leaders, कुछ लोग मारे भी गए. But ultimately what happened, Maoists were forced to surrender en masse. They surrendered and today Rohtas is at peace. अब जो जिस रोहतास फोर्ट पे जाने में पहले लोग डरते थे, आज पिकनिक मनाने लोग जा रहे हैं. All this has happened in a gap of say 2-3 years. It happened and after a decade लोग भूल चुके हैं कि कभी हम Maoist रहते थे. Things can change with a small inspiration, with a small thinking कि मैं कर सकता हूँ, with a small belief in yourself and a different approach. बिल्कुल जैसा चल रहे हो सब लोग उस पर चलते रहोगे तो चीजें नहीं बदलेंगी. थोड़ा अलग चलना होगा, थोड़ा अलग करना होगा. और मैंने जीवन में मैंने बहुत इंस्पायर हुआ हिस्ट्री से. जब मैं बिहार को देखता हूँ तो लगता है भाई हम तो क्या थे, ज्ञान की भूमि थी. ज्ञान उपनिषदों से शुरू हुआ. इनिशियली वेस्टर्न इंडिया में जो आज पाकिस्तान का पार्ट है, जब वेद लिखे गए तो उसमें इट वाज बिलीव टू बी द स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज. और उसका जो एंड हुआ कहाँ हुआ, उपनिषद में कहा जाता है, वेदांत में हुआ. एंड द लैंड व्हिच गिव वेदांत टू द वर्ल्ड इज मिथिला, नॉर्थर्न बिहार. तो our ancestors were so intellectual that they were not satisfied with mere physical knowledge. They wanted to get to the depth of all spiritual knowledge, and including the ladies, represented by ladies like Gargi, like Maitreyi, in such an ancient time. If you feel, तो मिथिला में ऐसी ही बातें होती थी. उनके तो हम वंशज हैं. तो ऐसी जब बात हुई तभी तो बाद में जाके विश्वविद्यालय स्थापित हुए. बौद्ध धर्म का दर्शन निकला, जैन धर्म का दर्शन निकला. इसी भूमि से अनेक प्रकार के सिद्धांत निकले. नालंदा स्थापित हुई, बाद में विक्रमशिला स्थापित हुई. छोटे छोटे जगहों में और भी बने विद्यालय स्थापित हुए. ये रिप्रेजेंट करती थी क्वेस्ट फॉर नॉलेज. बट बाद में अभी प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है, बच्चे एग्जाम देना नहीं चाहते हैं पूरी मेहनत करके, चाहते हैं किसी तरह पेपर लीक हो जाए, कोई आदमी हमें पास करा दे, कोई चिट ले आए, कुछ करे, कोई हमारी जगह एग्जाम दे दे. इस तरह की एक प्रवृत्ति बनती जा रही थी. दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो वी वर अ लैंड ऑफ नॉट जस्ट नॉलेज, बट नॉलेज जब रहती है तो आप शौर्य भी होगा. यू विल हैव मिलिट्री वेलर, यू विल हैव पावर, पॉलिटिकल पावर. इन दोज टाइम्स जब बिल्कुल न रोड थे, न कम्युनिकेशन थी, न टेक्नोलॉजी थी आज की तरह, पाटलिपुत्र में बैठकर you had an empire which was bigger than today's India. It spanned across Afghanistan, it spanned all towards the northeast and went to the 2 seas in the south. That was an empire which was created by our illustrious ancestors in a time which did not have the technology or connectivity like today, but all the edicts issued from Patliputra were followed religiously in every part of India. ये हम कर चुके थे पहले. कैसे कर सकते होंगे? If you look at things, तो बहुत पहले से ही महाभारत आप पढ़ोगे तो महाभारत में फाइंड लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ टेलिंग कि मगध की शक्ति कितनी है. जरासंध को सीधे युद्ध में पराजित नहीं किया जा सकता, मल्ल युद्ध में पराजित कर सकते हैं. एंड देन वी हियर द होल स्टोरी हाउ दे व्हेन दे कम टू मगध दे डू नॉट टेक द डायरेक्ट रूट. अगर चाहते तो दे वुड हैव कम फ्रॉम हस्तिनापुर वाया प्रयाग, दे वुड हैव क्रॉस प्रयाग, देन हैव क्रॉस वाराणसी एंड देन हैव कम टू पटना and then have gone to Rajgir. But instead of doing that, there was so much impact of Magad. It is so amazing the way you have woven everything around and you have inspired the youth of Bihar. Because I know, and so much you are doing for people. Let's inspire Bihar at different, you have different chapters for each place, like Buxar chapter. Recently you had Buxar chapter, right? Something you were doing there. And there was something in, if I'm not mistaken, it was Bhagalpur chapter. And there was one, I'm not very sure of the names, लेकिन आप सब जगह काम कर रहे हैं. Right? But before saying anything, I want to read out a poem, small lines, 4 lines from Ramdhari Singh Dinkar का जो रश्मि रथी है उसमें से. And I want to read it out that I really find that you are this person. वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया. This is what I really found very resonating with what you are. Thank you. And huge, I think you get a lot of blessings from people around you also. Like you understand, there are people around you who have
who have come to you. I know myself, मैं खुद जानती हूँ बहुत सारे लोग को जो जिन्होंने अपना आउटलुक चेंज कर दिया है just because they have met you, they have seen you work. You have been organizing जनता दरबार में जहां पे आपने लोगों को इंस्टेंट जस्टिस देना शुरू किया. So through that, I know a lot of people. जो मैं भागलपुर, my hometown is भागलपुर, so I have met a lot of people recently जिन्होंने आपको देखकर, you are their inspiration and they have started doing for the society. और पहले वो लोग इतना नहीं सोचते थे जो अभी सोचने लगे हैं, because you have become an inspiration for them. And it is such a huge thing that now everyone, if they start, अगर वो छोटे steps भी लेंगे तो कितना बड़ा हो सकता है हमारा ये the thing that you have taken under your hand. Let's inspire Bihar. That is actually doing huge work. So basically the concept is like हम लोग जैसे पहले थे, energy तो आज भी वही है. We were a land which had such things, seen such things in the past. Even today we can have a thing which can be much better than the past. अब तो technology भी है, we have connectivity, we have so many things which did not exist then. So with these things added to us, बस एनर्जी कहाँ लगानी ये सोचना होगा. एनर्जी हमारी कहाँ लग रही है? इन ऑल नेगेटिव थिंग्स. वी आर हेल बेंट अपॉन फाइटिंग ईच अदर ऑन द नेम ऑफ कास्ट, ऑन द नेम ऑफ क्रीड, रिलीजन, ऑन द नेम ऑफ जेंडर. इस पे हमारी सारी एनर्जी लगती है. वही एनर्जी अगर हमारी सही चीजों में लगे तो मिलकर हम अच्छा नहीं कर सकते क्या? लेट्स इंस्पायर बिहार इज अ कैंपेन टू कनेक्ट राइट थिंकिंग पीपल एंड इंस्पायर देम टू डू समथिंग इवन अ बिट टुवर्ड सोसाइटी. जो आप 1 घंटे आप पढ़ा सकते हो 1 महीने में फ्री में, तो चलो वही कर दो, बट डू दैट. And collectively, if we start doing something which is totally selfless for the society, then definitely we'll be able to do some change. So what we have done is we are trying to create chapters, and we have actually now found chapters in all districts of some motivated youth who are trying to connect the right thinking people living in the district with those from that district, hailing from that district, but living outside that district, say in some other city in India or abroad. And we are trying to create a network which can contribute in small bits so that collectively that contribution becomes visible and inspires people more and more to contribute for a better future collectively. That is the whole campaign is about. So it's driven on 3 values: education, egalitarianism, and entrepreneurship. 3 E's. So 3 is like work something to improve the status of education and make it in the spirit of knowledge. Make people realize, make students realize, and teachers realize how they should be spreading that light of knowledge amongst each other. Then also engage people who are engaged in social work, which thinks beyond caste. Because most of the things in Bihar, if you किससे भी आप बात करोगे तो इस limitation के beyond वो बात करते ही नहीं. Unless we start working together and start saying things together in that egalitarian manner, we'll not move ahead. हमारी एनर्जी फिर उसी में बिगड़ी रहेगी और लोग फेसबुक पे डिबेट करते रहेंगे हमारी जात के कितने लोग विधायक बने, कितने लोग मंत्री बने. इसी पे हमारी सारी एनर्जी चली जाएगी. जहां लगनी चाहिए तो नहीं लगेगी. तो वी हैव टू ब्रेक दिस माइंडसेट. वो तभी होगा जब हम लोग साथ में ऐसे लोगों को जोड़ेंगे जो हो. Unless we set an example, people will not believe us. But set example करने के लिए लोगों को सामने आना होगा. And we have to बोलना नहीं होगा, करके दिखाना होगा. हाँ भाई मैं हूँ. जो आप सोचते हो उसका उदाहरण मैं सामने हूँ. बिल्कुल सही. और आपने ये जो उदाहरण जो सेट किया है, the example you have set is there for everyone. Now the world is actually seeing, and you have actually uplifted so many people. Their mental state, the state of the youth, उनका माइंडसेट चेंज किया है. जो डिसओरिएंटेड थे, जो आपने बताया कि रोहतास में एंड वाल्मीकि नगर में, जहाँ पे वो उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दिया आपने. वो जहाँ पे द काइंड ऑफ पीपल दे वेयर, यू हैव एक्चुअली गिविंग देम डायरेक्शन. सो इट इज सिंपली, बट आई वांट टू नो वन थिंग. what is it that powers you up, in the sense कि what is, you have become so popular, so how did you become that the Vikas Vaibhav that everybody knows that person? नहीं, मैं तो यही देखता हूँ कि एवरीवन हैज, मतलब हम हर आदमी जन्म लेता है ना, कुछ करने के लिए आता है. तो मुझे लगता है मैं भी कुछ करने आया हूँ और कुछ करना चाहिए. और जब मैं देखता हूँ लोगों में कितनी क्षमता थी, तो आई एम ऑलवेज इंस्पायर्ड बाय आदि शंकराचार्य. आदि शंकराचार्य हैड अ लाइफ स्पैन ऑफ जस्ट 32 years, बट ही हैड सो मच ऑफ विजन एंड सो मच ऑफ अ मिशन मोड कि 8 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया. He studied for 8 years and after that he went on preaching for the next 16 years of his life, the last 16 years. But उसमें उनका इतना इम्पैक्ट हुआ, he traveled 3 times all over India. उस समय जो लोग थे दिग्भ्रमित हो गए थे. हिंदुइज्म वाज इन वन ऑफ द वर्स्ट कंडीशन, क्योंकि इतने सारे बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस थे जिसमें लोग भूलते जा रहे थे. बट देन ही ट्राइड टू सी हाउ टू इंटीग्रेट इंडिया. 4 मठों की स्थापना हुई. आज भी आप कहीं 4 धामों पे जाएंगे
you will see how things are connected. The dham in the north will have priests from the south, so that is an integration. और हर व्यक्ति जो आप जाओगे किसी धाम पे, you will find people from all over India coming, and they have been coming since ages. तो कैसे हुआ? तो अब देखोगे one person realized and thought of how things can be connected. Every one of us has immense potential and personifies like in people like चाणक्य. जिस समय सोचते होंगे, आप सोचेंगे ना कैसे एम्पायर बना, तो आज भी 4 लोगों को बिठा लो, आपस में लड़ाई हो जाती है. उस समय के भारत में जो कनेक्टिविटी भी नहीं थी, लोग मोबाइल में बात भी नहीं कर सकते थे, इस राजा को उस राजा से मिलवाना और मिलकर एक अखंड भारत का निर्माण करना आसान था क्या? बट किया हम ही लोगों ने किया ना, हमारे पूर्वजों ने किया. तो वही बात लगता है कि भाई क्षमता में कमी नहीं है. उपनिषद का वही मंत्र जो मैंने शुरू में कहा, एवरीवन इज बॉर्न यू आर कंप्लीट. ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. तो पूर्ण है आप, लेकिन पूर्ण को आप रियलाइज करेंगे तभी ना. अगर आप सोचेंगे कि हम खंडित हैं, कुछ अलग भाग है, स्टार्ट रियलाइजिंग दैट पूर्णता विद इन यू, यू विल बिकम व्हाट यू वांट टू. और नथिंग इन अ नेम. मैं तो हमेशा ये देखता हूँ, निमित्त मात्र हूँ, सकारात्मक योगदान करते रहना ही ध्येय है. दैट इज लाइफ. यू नेवर नो हाउ व्हेन थिंग्स विल जस्ट पास. तो जो आपका टाइम है अब है. इफ यू वांट टू बी कंट्रीब्यूटिंग, दिस इज द टाइम. नेवर थिंक कि बाद में ऐसा कोई दिन आएगा जब आई स्टार्ट डूइंग समथिंग. व्हाट यू कैन डू नाउ is what you actually would be contributing to the scheme of things or no, is what I feel, and that is how I've been doing all through. If I can ask you one thing about that eureka moment for you, when you had that clarity that you want to do all this, that transformation in you, or that moment that you discovered that this is what you want in your life. नहीं, इसमें उस तरह से अगर आप सोचेंगे ना, तो जैसे IIT का एग्जाम जो मैंने दिया था, पेपर्स लीक हो गए. आई वर्क वेरी वेरी हार्ड, बहुत मेहनत करके जब एग्जाम देके आए तो आई वाज लाइक वेरी रिलैक्स्ड कि चलो हो गया. लेकिन जब एक एंट्रेंस एग्जाम देकर आए तो नेक्स्ट डे आई वाज वोकन अप बाय माय मदर एंड शी सेड अब तुमको फिर से एग्जाम देना होगा. मैंने कहा क्यों? तो नहीं, पेपर लीक हो गए हैं. तो पेपर लीक हो गए हैं मतलब कहाँ से लीक हो गए? तो नहीं, पटना में कोई था सेटर, उसने पेपर लीक करा दिया. एंड इमेजिन लाइक इफ यू वर्क हार्ड फॉर 2 years विद द होल मिशन कि इस डेट को मेरी एग्जाम होगी और अच्छे से दे के आऊंगा, क्या लगता होगा? एंड देन आई रियलाइज कि भाई क्या है, उस समय भी सब सारी चीजें मेरे मन में चल रही थी. बिहार क्या था क्या नहीं था, कि हम लोग क्या थे एजुकेशन में. अब इस मैंने देखा नाउ इट्स अफेक्टिंग मी. जब पढ़ता हूँ और इतनी मैंने मेहनत की, बट ड्यू टू द सिचुएशन इन बिहार, चीजें देखो आज मैं फिर से एग्जाम देना होगा. हाउ मच पेन, हाउ मच ट्रॉमा, नॉट जस्ट मी, एवरी कैंडिडेट विल फेस. समथिंग मस्ट बी डन टू चेंज द स्कीम ऑफ थिंग्स. दिस फीलिंग केप्ट ऑन इन माय माइंड व्हेन आई वेंट टू IIT. आई गिव द एग्जाम, आई वेंट ओवर देयर. वहां जब गया तो फर्स्ट ईयर माय फादर वाज पोस्टेड बैक टू बरौनी रिफाइनरी, पहले भी थे. बरौनी जाने में जब गर्मी छुट्टी हुई तो मना कर दिया गया घर से. मैंने कहा क्यों नहीं आना है? तो नहीं, पकड़ के शादी होती है, अभी शादी का सीजन चल रहा है. तो अगेन आई सेड दैट द सेम बिहार इज इंपैक्टिंग मी. बाकी ठीक है, अगर मैं चला जाऊं, स्कॉटलैंड चला जाऊं, जाके वेस्ट कोस्ट पे सेटल हो जाऊं, कहीं US में रहूं, ठीक है, आई बी अर्निंग फॉर लिविंग, बहुत खुश रहूंगा, सब कुछ होगा, आई हैव अ नाइस फैमिली, सब कुछ होगा. बट व्हेन आई कम बैक टू बिहार, जब मैं आऊंगा, तो मेरे मन में ये क्वेश्चन हमेशा होगा, मैंने क्या किया? व्हाट डिड आई डू टू चेंज द स्कीम ऑफ थिंग्स? And then I realized that I should do something, and I have that potential in me, and I can actually contribute to some change. तो मैंने कहा देखो, I have a thinking which is very different from other people. लोग देखते हैं कि हम अपने लिए क्या कर सकते हैं, but I have a feeling कि what I can do for the society in a selfless manner. Everyone has a different mode of life. तो ठीक है, मैं फॉरेन जाऊंगा, अच्छे कमाऊंगा, maybe I can do some philanthropic work. But अगर मैं simply civil services में आता हूँ and I start working at the grassroots, लोगों से बात करना शुरू करता हूँ, try to not just look at the problem but try to be a part of the problem and then try to solve it. अगर आप कहते रहेंगे सब खराब है तो कुछ तो होगा नहीं, बट थोड़ी सी उसमें एफर्ट लगाना शुरू करेंगे तो हो सकता है चीजें बदलेंगी. एंड दैट इज व्हाट ड्राइव मी टू अपीयर फॉर द सिविल सर्विसेज. और फिर मैंने आई अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशंस एंड आई वाज फॉर्चुनेट इनफ, ब्लेस्ड इनफ टू गेट पोस्टेड इन बिहार. आई गॉट माय होम कार्डर बिकॉज अब मन में चल रहा था बिहार के लिए कुछ करना है, एंड गॉड वाज काइंड इनफ टू सेंड मी टू द सेम प्लेस आई हेल फ्रॉम. एंड उसी भावना के साथ मैंने कहा कैसे बगहा में हुआ, रोहतास में हुआ, विद दैट मिशन ऑफ चेंज, थिंग्स व्हिच वर इंपैक्टिंग मी, आई ट्राई टू सी कि चीजें पूरी नहीं बदल सकती. आई कैन नॉट चेंज द होल स्कीम ऑफ थिंग्स, बट आई डू माय बिट. लेट्स सी, दैट विल बी एटलीस्ट लीव मी विद माय सेटिस्फैक्शन दैट आई हैव डन माय बिट. वही जब चीजें आगे बढ़ने लगी तो आई कुड सी दैट इंस्पिरेशन फ्रॉम हेरिटेज कुड चेंज थिंग्स dramatically and drastically in districts like Bagha and Rohtas. And now I'm trying to replicate the same thing by inspiring people for the whole of Bihar. आप चाहोगे तो हर डिस्ट्रिक्ट में there are lots of things which can actually inspire you, and if you start getting inspired and start doing that bit, ये तो मैंने अपनी कहानी सुनाई, अगर मेरे जैसे और भी 1000 लोग हो गए तो क्या होगा? मतलब लोग मिलते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, श्रृंखला बढ़ती चलेगी, बदल जाएंगी चीजें. जैसे हम थे उससे बहुत आगे जाएंगे, and then the whole world will look at us
and say this was a land which had people like Chanakya, people like Yagyavalkya in the past, and now new names are being added. वो श्रृंखला वहीं खत्म नहीं होगी, नए लोग जुड़ेंगे, and that things will carry on. Is the whole vision, my vision for Bihar. And when that happens, obviously, unless Bihar develops, India will not develop. This is so incredible. Which had led India for more than 1,000 years. With the same energy, if we start delivering and we start integrating and performing, kya hoga? The whole country will also get inspired. Because this land had once inspired. अगर आप कहानियां पढ़ोगे ना तो बहुत सारी inspirational stories about how we inspired. People used to come all the way from China, braving Himalayan chills. Tibet में 1,000 years back, just in Bhagalpur की बात आप करोगे विक्रमशिला में, the whole of Tibet people are given gold, and all this gold had got collected to bring an acharya from Vikramshila. क्योंकि उनको लगता था कोई आएंगे तो हमें पढ़ाएंगे, and the whole mission which went ahead from Tibet was refused for the first time, but then they waited for 3 years and kept on persuading. उसके बाद आचार्य आतिश दीपंकर श्रीज्ञान went over to Tibet, and Tibetan Buddhism, which survives to the day in the form of Vajrayana, and it is being followed in Sikkim, it is being followed in Bhutan, it is being followed all over Tibet, and the people of Tibet who are presently living in India. So these things are living survival. Is all this originated in Vikramshila, and Vikramshila is no more. Only ruins are there, but the inspiration lives on. So that is how things happen. और इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज आप पढ़ोगे उस समय कैसे लोग आते थे, कितनी मेहनत करके आते थे, और जब आप देखते हो कि आज वहीं के बच्चे बाहर जा रहे हैं, they are migrating all over Humpty Dumpty's lots of places trying to get some knowledge, तो लगता है भाई क्यों, हम में क्या कमी है, वही तो जमीन है. लोग 1000 साल पहले ऐसे था, तो आज भी अगर हम चाहें तो we can actually inspire people to establish great institutions even greater than the times of Nalanda and Vikramshila. But थोड़ी सी आपको वो मन में बात लानी होगी, करना है. अगर वो फीलिंग आएगी, सबको एक बार में नहीं आएगी, बट धीरे धीरे कुछ तो एग्जांपल्स बनेंगे ना, तो बाकी लोग इंस्पायर होंगे. And that is what we are trying to do. There's one thing I would like to ask you, since you have seen and faced a lot of unprecedented scenarios, like you have literally jumped into them. So I would like to know, when life throws, so in the case like you, when you are in front of a scenario which is not very, in short, let me ask you, when you are faced with those challenges of life, then how do you respond to it? And how would you ask my viewers here to take those scenarios as? देखिए जब बहुत परेशानी होती है ना, थोड़ा टाइम अपने आप सोचोगे तो आप रियलाइज करोगे कि आपको आंसर मिल जाएगा. थोड़ा सा मतलब ट्राई टू, जैसे मुझसे आप पूछेंगे बहुत लगता है, आई ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट bit of, you can call it meditation, but I won't call it exactly meditation, but try to brainstorm within yourself कि क्या हो सकता है, and then you find कि चीजें निकलती हैं. Like many a times when you face dilemmas, always you know that if you do one thing, you again face the consequences. If you do the right thing, if you take a wrong decision, again you have to face the consequences. अब करना क्या है ये आपको decide करना है. Life will throw its challenges and also give you options. You have one thing to do or you can do the other thing, but दोनों ही आप करोगे तो it will have its own consequences. अब किस तरह के consequences आप face करना चाहोगे? If you do the right thing and face the consequences, at least you will not feel guilty, you will have a nice sleep. But if you do the wrong thing, one wrong will make you replicate several wrongs, and the thing goes on. तो अगर आप खुशी से अच्छे से जीना चाहते हो, तो just have a simple life, do the right thing. बहुत अच्छी रहेगी आपकी जिंदगी. Work hard, मेहनत करो, अच्छे से जो भी कमा सकते हो कमाओ. Live life properly, and you'll be really happy. And happiness is the goal of life. Satisfaction is the goal of life. Very true. So I want to know one more thing, like which personality of yourself do you really admire yourself the best? The IPS, the author, the reformer, which is it that is really powers you up all the time, is really something that keeps you, that you are in love with? Which part of yourself? I'll not exactly call it a reformer, but someone who is actually trying to change things. So that is the part of me, like हमेशा मन करता है कुछ अच्छा हो, कुछ अच्छा करूं. Things should get better. What I can do for it, and then I try to seek sources, inspiration from sources. Like sources could be textbooks, it could be lives of personalities who have lived and done well on this earth, things like that. But the basic motto is how to make things better, how to have a better life, how to see things be in a better manner, happening in a better manner, and see people more happy. So you have been changing the society
the way things are changing before you, and you are not saying that you are not a reformer, then who is a reformer after all? There are very few reformers, real reformers left in this world, and one of them are you. So here I would really, beg to differ here. I truly believe that you belong to that category, absolutely. And if you're saying that that is your favorite and most loved personality of yours, then absolutely, I think most of the world loves that particular personality today. You are one of the most popular person as an IPS officer on social media, right? And not only that, you have been connecting with the youth, trying to inspire them through your own little way, through Twitter, through your YouTube channels, through your Facebook. Am I right or not? Yes, that's very true. जिंदगी मतलब इतनी नहीं इंस्पिरेशन जो भी आपको मिलती है अपने अंदर लेके चलेगा तो क्या होगा you end the story ends with you. Try to spread it. If you are a source of positivity, if you make people positive, you'll be more happy. है ना जैसे अब the time to be happy is now, the place to be happy is here, and the way to be happy is to make someone happy. Whatever energy you have, whatever positivity you have, spread it around, and then you'll find you're getting more positive, more happy by doing that. Awesome. That is simply stupendous. Awesome. And I have been reading most of your Twitter handles, and it is simply amazing the kind of powerful quotes that you put in, and the translations, the Sanskrit translation that you put in, are so awakening, and it really gives you a certain click in your head कि ये पढ़ने के बाद कि कुछ करना है. It definitely gives you that kind of. Many people have actually called me and told me that one of them कभी कभी जो श्लोक मैं ऐसे ही डाल देता हूँ ना सोच के कुछ सुबह उठता हूँ डालता हूँ it actually changed their lives. बहुत सारी प्रॉब्लम में चल रहे थे and that's some message, some insight in a particular श्लोक actually gave them the solution. होता है तो just वैसे ही if you keep sharing some positive quotes, something which you actually are impacting people unknowingly, it happens. तो जो कर सकते हैं क्यों ना करें, करना चाहिए. Absolutely, absolutely. So here I would like to ask you, which is the most daring decision that you have made till date? Daring decision. Since you are an IPS officer, you have faced the dacoits. आपने उन लोगों को directly जंगल से daring decision उस तरह से पूछेंगे ना तो सबसे daring decision was to conduct elections right on the top of the Camur Hills in 2009. And it was very difficult, and actually the easiest way out was to shift the booths, but वैसा नहीं करके we tried कि अगर जब तक हम लोग इसमें इलेक्शन कराएंगे नहीं, people will not integrate into the mainstream, things will not get solved. Elections कराने जरूरी है, people should feel a part of the democratic process. वरना ये नक्सल का तो चलता ही रहेगा ऐसे ही. For that, whatever we wanted to do, initially we could not do, जैसा मैंने आपको बताया. It was a very daring decision at that point of time. और मुझे याद है जिस समय इलेक्शन सेकेंड टाइम हम लोग कराए 1600 लोगों को भेजकर, तब भी एक एक पल जब वो पूरा ऑपरेशन था 2 दिन का, पानी नहीं थी, लोगों वहां पे हम लोगों ने ड्रिलिंग मशीन्स भेजी, वहीं चापाकल लगा, तो फुल ऑपरेशन, फुल 3 जगह से पहाड़ से लोग चढ़े, डोमिनेट किया, तब गाड़ियां चढ़ी हमारी. और लास्ट में जब विड्रॉल हुआ शुरू, तो अंधेरे से पहले लोगों को विड्रॉ करना, तो अंतिम जो आदमी आया था ईवीएम सब लोगों ने हेलीकॉप्टर से मंगवा लिया था, लेकिन जो पहाड़ से लोग उतरने थे, जब लास्ट आदमी हमारे कैंप में पहुंच गया, इट वॉज 7:45 इन द इवनिंग. And it was like eureka moment. मतलब हो गया, मतलब we have actually delivered it. जब भी उससे पहले इलेक्शन होते थे कुछ ना कुछ कैजुअलिटी होती थी, कुछ होता था, नहीं होता. But this time we did it, and now I had a firm belief कि चीजें बदलेंगी. झंडा फहर चुका है किले पे, इलेक्शन भी हो गया, अब जो है ये इलाका बिल्कुल बदलेगा. It happened, आज बदल चुका है. तो डेयरिंग उसको उस समय के लिए मैं कहूंगा सबसे बड़ा डेयरिंग डिसीजन था. बाकी अगर आप देखें तो डेयरिंग डिसीजन तो दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ आदमी लेता ही है. जिस दिन गोली चली वो भी एक तो डेयरिंग डिसीजन दैट, और उसमें पता नहीं था कि गोली चलेगी. इट वाज सरप्राइज, इट हैपेंड दैट वे. बट इसमें तो पता था चुनौती है, हर पल पे है. जिस रास्ते से गुजरते थे ये भी मालूम था कि इसमें लैंडमाइंस लगी हुई है, लेकिन हम लोगों को फोर्सेस को इस तरह से लगाते थे कि उसको कोई ट्रिगर नहीं कर सके. तुम्हारी गाड़ियां जिस रोड पे चल रही थी उस पर एक्चुअली माइंस लगी हुई थी, which we also realized at some points of time कि हम लोग उस पर कितने बार निकले होंगे. अगर कोई नक्सल बैठा होता वहां पे, उसने ट्रिगर कर दिया होता तो गाड़ी चली जाती, लेकिन उसको टैक्टिकली स्ट्रेटेजिकली प्लान करके हम लोगों ने इलेक्शन कराया. दैट वाज अ डेयरिंग डिसीजन जो उस समय था. एंड इफ यू कैन टेल मी दैट वाज, मतलब ये तो डेयरिंग डिसीजन क्या, मतलब मुझे तो लगता है कि बहुत ही ज्यादा डेयरिंग, बिकॉज यू वर राइट इन द फर्नेस. ऐसा था
इस तरह का कुछ सिचुएशन था आपका, राइट? So tell me, how do you keep reinventing yourself? Like, I can see that you every day post, you have some wonderful post, and you keep going, a step ahead every day. Like, I see that your work is always like a step ahead. You're doing something new every day. So how do you keep reinventing yourself? How do you like do all this much? I spend some time with myself before I go to sleep. सुबह से सोचता हूँ कि दिन भर क्या हुआ. Then I also plan कि कल क्या करना है. थोड़ा सा सोच, maybe 10 minutes, 15 minutes, but as the journey progresses, one has to think, rethink, replan. If you're thinking about something, things may not work. But आप सोचोगे ना, थोड़ा सा spend some time with yourself. Those 15 minutes in a day, just be yourself and just think कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए, जो मैं कर रहा हूँ सही कर. All these questions should come in your mind, and then the next मिशन में अब कहाँ जाना है, क्या करना है, ऑटोमेटिकली आपको कई बार लगता है तो आप रियलाइज करोगे कि अपने लिए आप टाइम दे ही नहीं रहे हो. आप सब कुछ कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, बट जो थोड़ा सा टाइम सोचना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ, वो आप नहीं कर रहे हो. ये So करना शुरू if कर दो, चीजें बदल जाएंगी. so if you can tell us, what do you do before sleeping, going to sleep, and after getting up in the morning? जो आपका regime है, which powerful people that they adopt to actually जनरली live. लाइक आई हैव बीन अ रेगुलर डायरी राइटर. मैं लिखता था पहले कि दिन भर क्या हुआ. अभी इधर से पुलिस में आने के बाद छूट गया. पुलिस में आने यूज्ड टू बी एरेटिक, बट स्टिल दिन भर एक बार सोच के सोने से पहले सोचता जरूर हूँ क्या किया, क्या हुआ. एंड देन आई फील कि क्या होना चाहिए. अगर कोई चीज बहुत अजीब सी हो गई तो मैं देखता हूँ दोबारा नहीं हो, कैसे नहीं हो. अगर आपको कभी गुस्सा आ गया हो तो वो भी लगता है क्यों आया था. हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, कंट्रोल योर इमोशंस, एंड देन बी अ वेरी बैलेंस्ड सोबर पर्सन एंड डू थिंग्स राइट. And what are the first few things that you do in the morning? Do you meditate? Is it or you first opt for कि मैं पहले चाय पीऊंगा, उसके बाद मैं अपना दिन शुरू करूंगा, वैसा नहीं, होता है सुबह आपका? सुबह उठता हूँ तो बिल्कुल आराम से पहले चाय पीता हूँ, और देन आई थिंक, फिर वही जो कोट में आपसे शेयर करता हूँ. कोट में कोई पहले से प्लान करके नहीं करता हूँ, सुबह ही सोचता हूँ, एंड देन आई थिंक दिस थिंग आई शुड बी शेयरिंग, एंड देन दैट्स हाउ माय डे स्टार्ट्स. एंड दिन भर क्या करना है वो मेंटली प्लान कर लेता हूँ. आपसे भी आज बात करनी थी तो इन द मॉर्निंग इट वाज इन माय माइंड क्या क्या करना है, तो मैं दिन में देख लेता हूँ कीप टारगेट्स फॉर द डे कैसे करना है, एंड आई ट्राई टू मीट द टारगेट्स इन टाइम. और जो भी लोग मुझसे मिलते हैं आई ट्राई टू सी कि जो मैं कर सकता हूँ उसके वट एवर थिंग इफ आई कैन डू आई डू दैट. इफ आई कैन नॉट डू आई टेल देम वेरी फ्रैंकली कि मैं नहीं कर सकता हूँ. बी वेरी ओपन, बी वेरी फ्रैंक. कोई बात छुपाने वाली बात नहीं है. जो मैं कर पाऊंगा मैं आपको स्पष्ट बोलूंगा मैं कर सकता हूँ, नहीं कर मैं ये बता दूंगा नहीं व्हाट माय लिमिटेशंस आर, बिकॉज आई विल नॉट डू द रॉन्ग थिंग. वो सिंपल सी बात है, देन यू बी हैप्पी. अगर थोड़ी सी चीजों को उलझाने लगोगे ना, जितनी उलझाओगे जिंदगी को उतनी उलझती जाएगी. दिनकर जी ने Very कहा था, true. चांद और कवि एक कविता है, रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता, और फिर बेचैन हो जगता न सोता है. तो मैनी टाइम्स यू फाइंड जितनी उलझने हैं, स्ट्रेस है अपनी लाइफ में, सब सेल्फ क्रिएटेड है. बहुत सारी चीजों में आप खुद उलझते चले जाते हो. अगर थोड़ा क्रिस्टल क्लियर एक विजन रहे आपका क्या करना है क्या नहीं करना है, उलझने नहीं आएंगे. आप बहुत आराम से चलोगे, खुश रहोगे. एंड आप खुद खुश रहोगे, दूसरों को खुशी बांटोगे, यू बिकम अ सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी. Wow, that was awesome. That was absolutely awesome. आप you are so well read. आपने इतना लगता है साहित्य इतना कुछ पढ़ा है. You have seems like you have a huge knowledge of history, archaeology, and everything. So can I ask you one thing? कि आप कौन सा बुक अपने फेवरेट बुक्स में से मानते हैं? तो रिसेंटली अगर आप पूछोगे तो आई read a book by Michel Danino, The Lost River. It's on the Saraswati. So it's one of the most wonderfully written books. The Lost River, The Lost River. River. Okay, Saraswati. सरस्वती रिवर. तो उसमें पूरी हिस्ट्री इंडिया की कैसे थी, चीजें कैसे, हमारे अंडरस्टैंडिंग कैसी है, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है. और अगर फेवरेट बुक आप पूछोगे तो फेवरेट बुक अभी भी मेरे पास में ही है, आपको दिखाता हूँ. वो हमेशा आसपास रहती है. लाइक आई हैव एन इमेज ऑफ शंकराचार्य right wherever I sit, and my favorite book is the Mahabharata. Mahabharat. Wow. So this I have read. It took me more than a year, almost a year to read in 6 volumes. But जब भी कुछ होता है तो just कुछ पार्ट आप पलटो और आप द्वंद में हो, पूछोगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाता है. And Mahabharata has so many examples. Like I remember, जैसे एक जो एग्जांपल आता है ना, जब कभी आप लोग आपको शेयर करता हूँ, जैसे जब द्रौपदी का आप लोगों ने नाम सुना, द्रौपदी का सुना ही होगा कैसे हुआ था, स्वयंवर में कैसे जीत के अर्जुन लाए, और फिर कुंती ने क्या कहा, एंड देन दिस होल डिलेमा वाज देयर, बिकॉज उससे पहले ऐसा कोई इंस्टेंस नहीं था जब अ लेडी कुड गेट मैरिड टू 5 हस्बैंड्स. तो दिस होल थिंग इज डिबेटेड इन द महाभारत. जो वॉल्यूम है इसमें करीब 20 पेज से ज्यादा है.
पूरे कलह मच गई, मतलब ये क्या है भाई, ये युधिष्ठिर ने कह तो दिया कि भाई हम करेंगे, चलो माँ ने कह दिया तो करेंगे, बट नाउ हाउ टू डू इट, कैसे बटेगा, कैसे होगा, देन दिस होल डिबेट स्टार्ट्स। एंड डिबेट जब जाते हैं तो द्रुपद, ऋषिद्युम्न, एवरीवन इज लाइक कंफ्यूज्ड कि भाई कैसे हो सकता है, ना किसी वेद में लिखा गया है, ना किसी स्मृति में है, धर्मशास्त्रों में नहीं बात कही गई, तो भाई हो कैसे सकता है, ये तो बिल्कुल अधर्म है, हो ही नहीं सकता है। एंड देन लॉर्ड कृष्णा ही कम्स विद एन आंसर। जब उनसे लोग पूछने जाते हैं भाई क्या है, तो वो कहते हैं कि भाई ये देखो धर्म क्या होता है, धर्म क्या होता है, इसमें ही सेज कि if अगर किसी बात पर डिलेमा हो कि क्या करना चाहिए, तो वन विल फाइंड आंसर्स इधर इन द श्रुति, श्रुति मतलब वेद, उसमें आपको मिलेगा आंसर। उसमें अगर नहीं मिलता देन यू लुक फॉर द स्मृतिज, जो धर्मशास्त्र हैं उसमें मिलेगा। उसमें भी नहीं मिला, डिलेमा है आपके पास, तो देन यू लुक फॉर पास्ट कंडक्ट ऑफ ग्रेट पीपल, महापुरुषों का आचरण, उसमें क्या था। अब ये जो सब प्रॉब्लम था, इसमें तो तीनों ही नहीं थे, न कहीं वेदों में ऐसा कोई उल्लेख है कि ऐसा हुआ हो, नहीं कि शास्त्र में ऐसा कोई हो कि ऐसा एग्जाम्पल हो, और न किसी महापुरुष के आचरण में था कि इस प्रकार का हो सकता है। तो देन ही आस्क्ड युधिष्ठिर, भाई क्या तुमको लगता है, मतलब शुद्ध मन क्या कहता है, अगर तुमको लगता है मन सही कह रहा है और उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो देन यू आर नॉट रॉन्ग। तो धर्म अगर जब बहुत ही डिलेमा हो, तो देन आस्क योर माइंड, इफ योर माइंड इज प्योर, योर माइंड इज वेरी सर्टेन कि मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, एंड दैट इज द वे ही टेल्स यू हाउ टू एड्रेस द डिलेमास ऑफ लाइफ। बहुत सारी चीजों में आपको लगता है कि ये है, इसके एग्जाम्पल यहाँ नहीं है, वहां नहीं है, देन यू स्टार्ट गेटिंग कंफ्यूज कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। तो उसमें तो सिंपल सॉल्यूशन इज concentrate within yourself, ask yourself, and if you feel what I'm doing is not going to harm anyone, जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, because I have that confidence in me कि मैं सही कर रहा हूँ, तो आप सही करो। That is, धर्म evolves. Even though we have a set of principles, we have a set of texts, rules, but it evolves with time, evolves with experiences, evolves with circumstances. That is the understanding which gets you maturity. This is one of the examples in the Mahabharata. बहुत सारे और भी ऐसे, conscience never lies, वही your हुआ conscience इसका never मतलब। lies. जैसे तो जो उसमें एक और शुद्ध मन यही हुआ बहुत ना। प्राचीन बात है, ऋग्वेद में भी है, उपनिषदों में भी है, द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षम परिसजाते, मतलब योर लाइफ इज लाइक टू बर्ड सिटिंग ऑन अ ट्री, वन ऑफ देम एंजॉयज एवरी फ्रूट ऑफ लाइफ, इट डज एवरीथिंग, अदर बर्ड सिंपली वॉचेस। दैट इज योर कॉन्शियस। जब आप सब कुछ कर रहे होते हो ना, कहीं अगर गलत करोगे तो आपके कॉन्शियस विल ऑलवेज रिमाइंड यू कि देखो ये गलत कर रहे हो, वो हमेशा बताता रहेगा। तो वो जो चीज आपके अंदर है, दैट कॉन्शियस विल नेवर लाई। व्हेनेवर यू आर इन अ डिलेमा कि सही है या गलत है, because if you do the right thing, again, just as I told you, it will have the consequences. You do the wrong thing, it will have the consequences. As the journey of life proceeds, if you keep doing the right things and you face the consequences, you'll be happy. But if you keep doing the wrong things, one wrong will land you into many wrongs, and then you get into a vicious circle in which you'll never be happy. And if you want to be happy and satisfied at the end of life, तो वही that should be the goal of life. ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म, नेकी पर चलें बदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले दम। Everyone has come, everyone will go, but the time you spend here, what you do, what you contribute, is what exactly you are. Wow, this is absolutely amazing. एंड आई मस्ट से कि महाभारत बहुतों ने, पता नहीं कितने लोगों ने इस तरह से पढ़ा होगा जिस तरह से आपने पढ़ा है, मतलब लिटरली कैरिंग द बुक अराउंड यू, बिकॉज एज फार एज आई अंडरस्टैंड दैट इज वन टेक्स्ट विच इवॉल्व्स, द अंडरस्टैंडिंग इवॉल्व्स ओवर टाइम एवरी टाइम यू रीड इट. Every time you read it with a new dilemma in mind, you find a different solution and different way to look at things, and that is amazing. इस गीता भी अपने आप में वही था ना, प्रश्न था, द्वंद्व के उत्तर हैं उस पर, और हर उत्तर को आप हर सिचुएशन अपनी लाइफ में देखोगे तो इट गिव्स यू अ डिफरेंट मोड ऑफ थिंकिंग ऑल द टाइम एंड कीप्स यू फ्रेश, कीप्स यू रिचार्ज्ड। महाभारत में इट हैज लॉट्स ऑफ डिलेमास व्हिच हैव बीन एड्रेस्ड वेरी वेल। क्या होना चाहिए, आदमी का नेचर कैसा होना चाहिए, आपकी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, बच्चों के साथ कैसा होना चाहिए, प्रजा के साथ कैसा होना चाहिए, साथ जो काम करें उनके साथ कैसा, एवरी डिलेमा हैज बीन आंसर्ड वेरी वेल। एंड whenever you are in dilemma, this is a book which is storehouse of ancient Indian knowledge, in which even the language is not as difficult as the Vedic literature. वेदों में, उपनिषदों में पढ़ने में, समझने में थोड़ा समय लगता है, बट महाभारत में तो इतने आसानी से सब समझ जाते हो कि मजा आ जाता है। मतलब बहुत सारी चीजों को ब्लेक ऐसे ही पलटे, 2-4 पेजों में हमको सोल्यूशन मिल जाता है। और अभी आप द काइंड ऑफ फील्ड यू आर इन, जहां पे आप हैं, वहां पे द सोशल कॉजेस दैट कम टू यू, आई एम श्योर दीज आर द लाइव एग्जांपल्स दैट यू कैन डायरेक्टली रिलेट विद देम. So I want to ask you, what are, since you write so well and आप quotes इतना डालते हैं, मैं जानना चाहती हूँ आप अपने लिए कौन सा quote बोल सकता, how will you represent yourself in a quote?
One quote that you like about it. महाभारत से ही है, धर्म एव हतोऽर्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म की जो हानि पहुंचाएगा, धर्म उसकी हानि करेगा। Simply it is like protect the law will protect you. Something like that. Okay. If you can share something else as well about the, as a song with yourself, as a song or a quote. Like this quote is something which really guides me. कि आप सही करोगे तो धर्म आपका साथ देगा. That is absolutely. And you are in जो policing है, इसमें when you are in the right way, and I have seen like the kind of aura that you have created when you were in Bhagalpur. तो उस समय मुझे लगता है कि इतने लोग आपसे शायद जुड़े हैं और इतने लोग आपको जानते हैं, and because of you they have turned towards doing good to others. आपने उनको धर्म समझा दिया कि क्या है, जो पहले हो सकता है वो लोग बिलीव करना छोड़ दिए थे कि we do not believe in this, doing this, because nothing good happens. Like if you ask again, it's the essence of what Mahatma Gandhi once said. Essence of Hinduism क्या है? He said कि all the texts disappear, but जो ईशावास्य उपनिषद का पहला श्लोक है वो रह जाए. ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचन जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा माद्विदः कस्य सिद्धनम. मतलब the whole universe कुछ है तो ईश्वर ही है, ईश्वर के अलावा कुछ नहीं है. अपना यहाँ क्या है? त्याग भाव से इसे भोगो, स्वार्थ में क्या लाभ है. तो जो भी आप कर रहे हो, अगर यू ऑलवेज फील कि हर चीज जो आपको दिखता है इट्स ऑल डिवाइन, वैसा है, तो देन द होल पर्पस ऑफ लाइफ बिकम्स वेरी डिफरेंट. आपको माद्विदः कस्य सिद्धनम, कोई स्वार्थ की मतलब उसका अंत कहाँ है? There's nothing you had come with, nothing you'll go with. जो भी है आप जो दे सकते हो कर सकते हो, and the way to be happy is to make someone happy. तो जो भी आप करोगे उस स्पिरिट के साथ करोगे. तो कैंपेन जो है वही है, इंस्पायर का वही पर्पस वही है कि इंस्पायरिंग पीपल टू डू द राइट थिंग. एक्चुअली वो पॉजिटिव एनर्जी इतनी होगी, जो रिजल्ट्स आएंगे दैट वुड बी अमेज यू, जो आपने सोचा नहीं होगा कि मेरे लाइफ टाइम में ऐसा हो सकता है अपने लाइफ टाइम वो देख लो. Okay, that's वो भी आपकी हर बातें इतनी इंस्पायरिंग है. Now I'm coming to one very छोटी सी क्वेश्चन है. मैंने एक बुक लिखा है, मैनिफेस्ट योर क्वेस्ट द पावर ऑफ यू. तो कुछ दिन पहले मैंने आपको वो भेजी थी बुक. थोड़ा सा शायद आपने डिड यू रीड द ऑलमोस्ट मैंने पूरा अच्छे से कुछ पार्ट पूरा अच्छे से पढ़ा था. बाकी मैंने आई स्कैन थ्रू द होल बुक एंड आई मस्ट टेल यू एवरी पेज ऑफ इट इज वेरी इंस्पायरिंग. मतलब जो चीजें मैं बोल रहा हूँ लगभग उसको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में आपने उसको लिखा है. Or anyone who reads that book will definitely find the answer in whatever dilemmas he's facing. I'm very sure about that. Thank you so much. Thank you so much. If that is your review about my book, I'm really grateful. I was really very impressed, and I'm really telling you, जो भी पढ़ेंगे उसको, with the dilemmas they have in mind, and they want to be successful, it has all the answers and the ways to which you can achieve success. Thank you so much. And I will not take much more of your time. मुझे ये थोड़ा सा और जानना है आपका कि what is your favorite travel destination? I know you love to travel and आपका जो हिस्ट्री से जो कनेक्ट है बहुत स्ट्रॉन्ग है. तो I want to understand what is it? नालंदा. और नालंदा है सबसे ज्यादा मतलब या दूसरा बोध गया, मतलब दोनों प्लेसेस, बट नालंदा इंस्पायर्स मी ऑफ इन सच अ मैनर, इट इंस्पायर्ड द होल जर्नी. मेरी कहानी शुरू हुई ना नालंदा से हुई. पहली बार जब वहां गया था learned about the heritage of Bihar, and then the whole story started that I want to do something. आज भी जब कुछ होता है तो I always try to make a visit to Nalanda, be in that university and recall what our ancestors were in the past, and that again recharges me with the whole energy. जब उस समय कर सकते तो आज क्यों नहीं कर सकते, क्या कमी है. And when I come out of Nalanda, I come out again fresh, fully recharged with the mission कि कुछ करते हैं अपनी life. Let's do something. Let's inspire Bihar. Let's inspire India. Wow, that's simply awesome. That was wonderful. And thank you so much, Mr. Vikas Vaibhav. And I'll tell you what, coming here on this platform, I'm sure as you keep inspiring people through this video, through this YouTube video, I'm sure you are inspiring many, many more through your work. And through the motivation that you are actually telling people that you can manifest whatever you wish for if you have that kind of belief in you, if you think that you have that kind of thing in you, and if you are walking on the right path, isn't it? This is what you portray in life. And thank you so much, everyone, for coming on my show. And keep coming back. If you have not subscribed to my YouTube channel, please do that.
Like, subscribe, and follow, and press the bell button. Bye-bye.